جدوجہد اور سفر کا کام کا آغاز کیا ہے اور اس کی ذمہ داری ہم نے جناب صابر بھائی صاحب کو دی ہے، اور جب سے جناب صابر بھائی صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کے کام کا آغاز کیا، آپ تمام لوگوں کی دعاؤں اور تعاون کے ذریعے الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور احمد آباد کے بلدیہ کے انتخابات میں بھروچ، موڈاسا اور گودرا میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں پر ان کو رکن بلدیہ منتخب کیا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ آنے والے ویدھان سبھا کے اسمبلی کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو الیکشن میں لڑایا جائے، اور ہماری کوشش یہی ہے، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے یا اپنی ذات کے لیے ہم یہاں پر نہیں آئے ہیں، ہمارا منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ مظلوموں کی ایک آواز ہو، آپ کی ایک سیاسی آواز ہو، اور میرا ذاتی طور پر ماننا یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے ہیں۔ اکثر یہ بولا جاتا ہے اور یہ تنقید بھی کی جاتی ہے مجلس کے اوپر کہ آپ کے لڑنے سے فرقہ پرست طاقتوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس کے لڑنے سے فرقہ پرست طاقتوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اس الزام کا جواب تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ گجرات میں پچھلے کتنے 26-27 سال سے بھاجپا کامیاب ہو رہی ہے اور بغیر مجلس کے لڑے۔ آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ آخری مسلم ایم پی جو گجرات لوک سبھا میں منتخب ہوا تھا وہ 1984 میں، تو کتنی نسلیں، کتنے بچے جوان بھی ہو گئے اور کئی تو اب 40-45 سال کے قریب ہو گئے ہوں گے جنہوں نے آخری مرتبہ دیکھا ہوگا، اور اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، ہمارے تحفظ کا مسئلہ ہو، ہمارے تہذیب کا مسئلہ ہو، تو میرا ماننا یہ ہے، ہماری جماعت کا ماننا یہ ہے کہ ہم ان تمام مسئلے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں تاکہ وہ آپ کے ان مسائل کی ترجمانی ویدھان سبھا میں جا کر کرے۔ جمہوریت میں صرف جذباتی تقریر کرنے سے، نعرے لگانے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، ہم کو اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو جمہوری طریقے سے، اور جو جمہوریت نے ہم کو موقع دیا ہے ہم اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کر سکیں۔ تو یہی آپ سے میں گزارش کرنے آیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ لمبی بات نہ کروں، کیونکہ میرے لیے یہ ایک بڑی باعث برکت میرے لیے بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، اس لیے آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہیں، کوئی سوال ہیں تو آپ اس کو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں، اور بلا تکلف اور آپ ان سوال کو کریے یا تجاویز کو دیجئے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھوج میں اگر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی سرپرستی حاصل ہوگی، آپ کی رہبری حاصل ہوگی، تو یقیناً مجلس کو یہاں پر آپ کے ان تمام چیزوں کی وجہ سے مجلس کو ایک تقویت ملے گی، مجلس کو مقبولیت حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ وہ کامیابی کا اسمبلی انتخابات میں وہ ضامن بھی بنے گا۔ تو آپ کا پھر سے شکریہ، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، تجویز ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔
जनाब मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, साबिर भाई, वारिस पठान साहब, शकील साहब, इब्राहिम भाई, तमाम उलमा इकराम। सबसे पहली बात ये है कि हमें बड़ी खुशी है, हम ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सियासत एक अपनी जगह है, मगर इस सरजमीन पर उनका मेरे ख्याल से पहली बार आना हुआ है और कौम मुस्लिम नौजवान लोगों की दिलों की एक धड़कन है। हालात मुल्क के और मिल्लत के पूरी दुनिया में आया हैं। खुसूसी तौर पर इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, उन हालात में उम्मत मुस्लिमा में बहुत सी सतह पर काम करने की जरूरत है। वहाँ जहाँ एजुकेशन की जरूरत है, मेडिकल और अलावा अजीम बहुत सारी चीजों की जरूरत है। वहाँ एक सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त हमें जो लगती है, वो एक मुसलमान के नाते और उलमाए किराम की मौजूदगी में इस मुल्क में हम जहाँ अपनी जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत चाहते हैं, वहीं सबसे पहले एक मुसलमान के नाते ईमान की हिफाजत सारे मसाइल में सबसे ऊपर है। अगर हमारा दीन सलामत है, हम ईमान पर कायम हैं, और उसके साथ साथ फिर जो है दूसरे मसाइल की बात है। जरूरत तो सब चीजों की है, मगर इस वक्त नामों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले हो रहे हैं, दीन पर, मजहब के नाम पर फिरका वाराना ताकतें बड़ी कुव्वत के साथ हमला आवर हैं। इन हालात में यकीनन हम सियासत में न होते हुए इस बात का इकरार करते हैं कि हिंदुस्तान में एक आवाज ऐसी है कि जिस आवाज के जरिए से मुसलमानों को वक्तन फवक्तन ये तसल्ली मिलती है कि जब कहीं हक बात करने की होती है, वहां पार्लियामेंट में एक आवाज है, जिस आवाज का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। देखो, हालात बड़े नाजुक हैं। पार्लियामेंट में कम से कम 50 शख्सियतों की जरूरत है। अकेली शख्सियत है, कुछ और भी हमारे भाई हैं, अपने हिसाब से सब काम करते होंगे। या हम सियासत की बात न करते हुए सिर्फ एक बात की तरफ उम्मत मुसलमान को तवज्जो दिलाना चाहेंगे, वो ये है कि ये जो हालात हैं, इन हालात में हम ये समझ रहे हैं कि कुछ हमारे गुनाहों की सजा हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि अल्लाह हमसे रूठ गया है हमारी बदअमली की वजह से, और हम इम्तिहान के एक सफर से गुजर रहे हैं। ऐसे माहौल में जहां हमें इस मुल्क में रहकर आईन की पासबारी करते हुए हमें इस मुल्क में ही रहना है, हमारा मरना जीना यहाँ है। हमारे बुजुर्गों ने पार्टीशन के वक्त में पाकिस्तान जाना मुनासिब नहीं समझा और इसी मुल्क में जीने और मरने का अहद किया। आज उनकी नस्लें भी यही चाहते हैं। बस हम यही चाहेंगे कि इस मुल्क में अमन व अमान सलामत रहे, और खुसूसन उम्मत मुस्लिमा और जितने भी इस मुल्क में रहने वाले दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, उन सब की खिदमत हो। और वो सारी बातें हम दिन ब दिन ओवैसी साहब की ज़बानी सुन रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात में यकीनन हमें जरूरत है इस बात की, सबसे पहले मुत्तहिद होने की जरूरत है। मैं अहले सुन्नत वल जमात का एक फर्द हूँ, इस बात का एहसास करता हूँ कि अपने अपने मसाइल पर कायम रहकर सारे उलमाए किराम को जिन मसाइल में हम एक बैठ सकते हैं, एक जगह जमा हो सकते हैं, वहाँ जमा होना चाहिए। और इस तरह की कोशिश करनी चाहिए कि जिसमें ओवैसी साहब की जो नीयत और इरादा है कि अपनी आवाज तभी बुलंद हो सकती है जब हमारे नुमाइंदे चुनकर
पार्लियामेंट में या राज्यसभा में या विधानसभा तक पहुंचेंगे या फिर छोटे चुनाव हुए उनमें भी पहुंचेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इत्तेहाद की जरूरत है, मुत्तफिक होने की जरूरत है। फुरूही मसाइल पर ज्यादा इख्तलाफ न हो सके, उन चीजों में हमें एक होने की जरूरत है। हर आदमी अपने मसलक पर कायम रहे और अपने मसलक पर कायम रहकर उम्मत के नाते, कलमे के नाते, खुदा के तौहीद के नाते और मुस्तफा की रिसालत के नाते, कुरान के नाते बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्यूज हैं जिनमें हम एक हो सकते हैं। बस यही गुजारिश है कि जब कभी काम की शुरुआत होती है तो मुखालिफतें होती रहती हैं। तंजीम पर और एमआई पर भी बहुत सारे इल्जामात होते हैं। ये नई बात नहीं है। इतना जरूर है कि हमने ये सुना कि मालेगांव से कोई मौलाना साहब चुनकर आए, एक हमारे महाराष्ट्र में से एमपी भी बने, धारासभ्य भी बने, बिहार से भी कामयाबी मिली। हम ये कभी भी नहीं सोच सकते कि मुखालिफ ताकतें किसी एक मुसलमान को आगे बढ़ने दें और वो चुनकर आए। मेरे ख्याल से गोधरा की जो नगर पालिका है उसमें भी बहुमत अपना है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं, शवाहिद है हमारे पास कि ऐसी चीज नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि जब मैदान में आएंगे तो मुखालिफतें होंगी। हम सिर्फ एक तालिबुल इल्म की हैसियत से मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम आपके लिए दुआगू भी हैं और इंशाअल्लाह हमारा जो दायरा है उस दायरे में रहकर हमसे जो कुछ होगा हम इंशाअल्लाह इस तंजीम के लिए, इस पार्टी के लिए हम ईमानदारी से खिदमत करेंगे। हमारी जो लिमिटेशन है वो आपके सामने है, खास करके इमामों की और उलमाए किराम की जो हालत कौम और समाज में है उसको हमसे ज्यादा आप जानते हैं। हमसे जो कुछ होगा दुआओं के साथ इंशाअल्लाह हमारी जो हैसियत और अल्लाह ने हमें जो ताकत और कुव्वत दी है उसका भरपूर इस्तेमाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उम्मत मुस्लिमा की जान और माल की, औलाद और इज्जत व आबरू की, ईमान और दीन और अकीदे की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें हक पर रखे और हक वालों के साथ रखे और शैतान के शर से बचाए और दुश्मनों के मंसूबों को नाकामयाब बनाए। ये चंद मेरे एहसासात थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब पर फजल फरमाए। ओवैसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में उनसे मुलाकात सरसरी तौर पे होती रहती है। मैं भी एक आदना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर हूँ। इस हैसियत से मुझे बेहद खुशी है और उलमाए किराम भी अपनी बात रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाकी सवाल जवाब जो सेशन करे जो है જરાક પાણી ટાઈમ થોડો ઓછો હોય થોડો ઝડપ में सवाल जवाब कहीं तो जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सरजमी के कच्छ पर आपकी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के तशरीफ आने का शुक्रिया। कभी हम यहाँ के पीएम से सुनते थे कि मुसलमान तो तुम भी और मुसलमान हैदराबाद के भी हैं, और आज मैं हैदराबाद के सांसद को अपने सामने देखता हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं बैरिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि हमारा कच्छ का जो इलाका है इसमें एजुकेशन की कमी है, तो आप एजुकेशन के लिए भी कुछ कीजिएगा। और आपने हमको जो यहाँ बुलाया और हमें इज्जत दी, उलमा इकराम का सेशन रखा, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और दूसरे जो मेहमान हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने इतने बड़े जो इलाके में आप शायद पहली दफा आए, लेकिन सरजमीन कच्छ बहुत एक अलग जगह है, यहाँ से सहाबा गुजरे हैं और मैं बहुत आपका इस्तेकबाल करता हूँ। और आप जो सियासत के साथ साथ एजुकेशन के एक कॉलेज भी हमारी मुसलमानों की नहीं है, बस मुस्लिम एजुकेशन एक है, तो एजुकेशन के लिए आप कुछ करेंगे या नहीं, ये आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बोलिए। अभी देखो एजुकेशन पे तो जी अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन के ऊपर आप सबने देखा है हैदराबाद के अंदर कितना बड़ा इदारा है। वो असद साहब चाहते हैं कि वो हर जगह पर ऐसा इदारा हो, तो इंशाल्लाह असद साहब और हम लोग सब मिलकर आप सबकी
साथ मिलकर ये इदारा अपने ताउन करेंगे और मैं अब खुदवा की दरखास्त करता हूँ। जय जी जय के सवाल करना बोलो ना इलियास, अभी थोड़ा आप भी थोड़ा बोलिए, तू बोलिए, उठिए। बोलो ना इलियास, बोलो। मैं ज्यादा तमकीन न लेते हुए एक सवाल करता हूँ असद साहब से जी जी। कि अभी जो विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं इसके बारे में आपने क्या सोचा है? मैं जैसा आपने शुरुआत में भी इसका जिक्र किया कि हम लोग गुजरात के विधानसभा में हिस्सा लेंगे और हम लोग साबिर भाई क़यादत कर रहे हैं, सदर हैं, तो इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ असम्बली हल्क़जात के ऊपर निशानदेही कर रहे हैं और उस पर काम भी हो रहा है। कितने असम्बली सीट पर हम लड़ेंगे अभी बहुत जल्दी होगा बताना, मगर जरूर असम्बली इंतखाबात हम लोग पूरी ताकत और तैयारी के साथ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। और दूसरी मेरे ज़हन में एक बात यूँ आ रही है, जो अभी यूपी के चुनाव हुए उसके अंदर आपने जो उसके बाद भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कायम किया, इसी तरह से अगर गुजरात के अंदर आपका कुछ इरादा है या आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा यूँ कहना है और मानना है और मेरी एक राय है कि जो यहाँ के आपके मजलिस के लोग हैं या यहाँ की जो आवाम है उसके सामने ये बात आ जाए, ताकि जो आवाम के जहनों के अंदर एक विचार होता है, एक जहन के अंदर सोच होती है, एक अंदर से वलवला और जज्बा होता है, उस एतबार से आवाम के अंदर भी एक जो जोश और वलवला आता है, उस एतबार से आपका वो साथ देंगे। और दूसरी चीज मेरे जहन के अंदर यूँ आती है कि आपने यूपी के अंदर कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था? यूपी के अंदर हम लोग करीब 85 सीट पर लड़े थे, 85 लड़े थे। इसी तरह मेरी एक राय है आपसे कि हर जगह के ऊपर आप अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने एतबार से हमसे बड़े हैं, आप ज्यादा इसको जानते और समझते हैं, लेकिन मैं अपनी कमबुद्धि की वजह से और जितना मेरे इल्म के अंदर है मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जहाँ पर हमारा ज्यादा फायदा हो और हमारे कैंडिडेट, हमारे जो विधायक हैं, जो उम्मीदवार हैं, जिसके जरिए से हमको पूरी उम्मीद है कि उस इलाके के अंदर, उस जगह के अंदर हमारा उम्मीदवार इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा, तो उसी जगह के ऊपर हमारे उम्मीदवार को खड़ा किया जाए और उसी जगह के ऊपर ऐसे उम्मीदवार को रखा जाए कि जो पूरा ईमानदार, दयानतदार, हर एतबार से माहौल मुआशरे को देखते हुए और पूरी दुनिया के अंदर और पूरे सरकार और आलम के अंदर हुकूमत की पूरी गहरी नजर हो उसके ऊपर, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि क्या चल रहा है उसको उसका भी इल्म ना हो और वो खड़ा हो गया है। ऐसे भी बहुत सारी होता है पार्टियों के अंदर के लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, किसकी क्या काम है, कौन सा क्या कानून है, उसको ये भी समझ नहीं है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही लोगों को खड़ा करेंगे, लेकिन मेरी एक राय है आपसे कि ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए, इतनी सीटों पर खड़ा किया जाए कि जहाँ पर हमें कामयाबी का यकीन हो। और अगर हमें 182 सीट गुजरात की है तो जरूरी नहीं है कि 100 खड़े हो कि 50 खड़े हो। अगर हमारे 182 के अंदर से 10 जने भी खड़े रहेंगे और वो 10 भी कामयाब हो जाएंगे तो हमारे लिए इंशाल्लाह 10 भी काफी हो जाएंगे इंशाल्लाह। यही मेरी यानी आपकी बात माकूल बात है। इंशाअल्लाह ताला हम जरूर, मैं और साबिर भाई हमारे जमात के जिम्मेदारान उसको जहन में रख कर ही अच्छा फैसला लेंगे। आप भी दुआ करिए कि हम अच्छा फैसला ले सकें। और जहां तक यूपी का सवाल है, हम लोग बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ अलायंस किए थे और उस अलायंस में हर एक को जितनी सीट मिली थी, उस सीट हमको जितनी मिली हम उसमें लड़े, अकेले नहीं लड़े हम। बाबू सिंह कुशवाहा साहब थे उसमें, मजलिस थी और 3-4 मुख्तलिफ पार्टियां थी, वो सब मिलकर हम लोग चुनाव लड़े थे। तो गुजरात में भी अभी देखेंगे
आगे क्या हो सकता है, फिर फैसला करेंगे इंशाल्लाह। मेरी गुजारिश आपसे ये, इस तरह ये मुफ्ती यासीन साहब ने कहा कि जो है हर इलाके में लड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ हमारे उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। तो हमारी राय ये है कि अभी से वक्त जो है उसके अंदर भूज और अपरासा के लिए कोई बेहतरीन उम्मीदवार मुंतखब ले जाए तो अच्छा है, जो ईमानदार हो, जिन पर सबको यकीन हो। तो ऐसे इंशाल्लाह 2 उम्मीदवार यहाँ से कच्छ से कामयाब हो सकते हैं अगर सब इसकी फिक्र करेंगे तो। अगर आपके जहन में कोई नाम है तो आप साबर भाई को बताइए। अवामी तौर पर मत बताइए, आप अकेले उनको बता सकते हैं और इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना मोहम्मद अलीफ साहब के तासुरात के बाद शायद ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ी। हम तहे दिल के साथ शुक्रगुजार हैं बैरिस्टर साहब के तशरीफ लाया, और हमारा आपसे एक मुअद्दबाना अर्ज और गुजारिश ये है, हम सब दुआ भी करते हैं और इंशाअल्लाह हम तमाम उलमाए किराम और सादात किराम जो हाजिर हैं और अगर किसी मजबूरी की वजह से शायद गैर हाजिर पे नहीं पहुंच सके हैं, सबकी इंशाअल्लाह दुआ और कोशिश रहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला सरजमीन कच्छ पर आपकी जिस तरह से आज मौजूदगी है, एक वक्त में इंशाअल्लाह आपको कदम कदम पर अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपसे ज्यादा करके एजुकेशन और उलमाए किराम जिनकी जरूरतें हैं, उलमाए किराम क्योंकि हमारे इलाके की मसाजिद जो बिल्कुल गरीबी पोजीशन के अंदर, मदारस गरीबी और मुफलिसी पोजीशन के अंदर चलते हैं, जहां आपसे ये अपील और इंशाअल्लाह आपकी उम्मीद होगी कि इसको किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड में या गवर्नमेंट अप्रूवल करा करके अइमाए किराम, अइमाए मसाजिद के लिए इंशाअल्लाह आप पूरी कोशिश करेंगे। ये आपसे इंशाअल्लाह हमारे इल्तिमास और गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ बोलेंगे सवाल में? वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड में तो काफी समस्या है। इंशाल्लाह अपनी जब सीटें यहाँ पर आएगी तो वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड की जमीनें यहाँ पर बहुत सी है लेकिन कई लोगों ने कब्जे करके रखी है। इंशाल्लाह वो सब जमीनें अपने लेकर मुस्लिमों की तरक्की के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जो लोग जमीन वक्फ कर गए हैं वो अपने लिए वक्त कर गए कि आने वाली पीढ़ी के लिए एजुकेशन या कोई भी यहाँ से या कुछ आवक हो, अपना समाज डेवलप हो, इसलिए वो वक्त कर गए थे। लेकिन इसके अंदर कुछ लोगों ने, कुछ गवर्नमेंट ने भी जो कब्जे कर ली, वो उनके लिए भी अपने लड़ेंगे और इंशाल्लाह वो जमीन छुड़ाकर अपनी कौम को आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मेरे लिए बहुत ही शर्फ की बात है कि मैं यहाँ पर इस मस्जिद में खड़ा हूँ। आज जब हम आपकी वीडियोस देखते हैं या आपके जो बयानात हैं वो सुनते हैं तो एक जज्बा और शौक पैदा होता है। लेकिन फिर कुछ लोग हैं जो हमारे जहनों को एक कश्मकश में मुब्तला कर देते हैं, हमारे जहन कंफ्यूज हो जाते हैं और आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किन ख्यालात को हमारे जहनों में बिठाया जाता है। तो लोग जो कहते हैं, मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हैं, माफी चाहूंगा, लोग जो कहते हैं आपको दूसरी पार्टियों का एजेंट बताया जाता है, यहाँ पर जो आपने यूपी के अंदर चुनाव लड़े तो उनके अंदर आपको वोट तोड़ने वाले बताया गया, तो आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये सवाल ऐसा है कि जब तक अल्लाह मेरे को जिंदा रखेगा इसका जवाब देते रहना पड़ेगा। मगर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे उनको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा हशर के मैदान में। मैं तो ये जवाब दे दूंगा आपको,
मगर जो इल्जाम मुझ पे लगा रहे उनको अल्लाह के सामने ये बताना पड़ेगा। तो अब इससे बढ़ के बात मैं क्या कर सकता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हाँ, मैं एक सियासी पार्टी हूं, मैं एक सियासी पार्टी का मेंबर हूं, इलेक्शन लड़ना मेरा काम है। मैं कोई अंजुमन तदफीन और तकफीन का तो नुमाइंदा नहीं हूं, ना मैं कोई एक एनजीओ चलाता हूं। मैं एक सियासी पार्टी का नुमाइंदा हूं, मेरा काम इलेक्शन लड़ना है। और अगर मेरे इलेक्शन लड़ने से मैं इलेक्शन इसलिए लड़ता हूं कि मैं जीतूं। कोई पार्टी लड़ती है जीतने के लिए, तो कोई हाराना, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, वो मकसद नहीं होता किसी का भी। अब जो आपके दिल में कश्मकश पैदा करते, आपको ख्यालात में आपको आता है कि भैया ये सही है कि आदमी है, तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आप अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी सही है या जमात सही है तो हमको साथ देने की तौफीक अता फरमाए। इससे बढ़ के तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना कि हो, क्योंकि क्या है कि अगर मेरी तकरीर सुन के आपको अच्छा लगता है और उसके बाद आपके दिल में ये वसवसे आते हैं, तो उसका तो हल सिर्फ किसी के इंसान की बस की बात नहीं है किसी के दिल को राग़िब किया जाए, ये तो अल्लाह का करम होना पड़ता। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करते रहूंगा। और रहा सवाल इन लोगों का, तो ये लोग जो है, ये लोग ना खुलकर मसाइल को बात करते हैं मुसलमानों की, ना मजलूम अवाम की, ना दलितों की। ये ऐसे लोग हैं जो इनका खुद इसमें कोई मकसद लगता है मेरे को, कि वो ये नहीं चाहते कि मजलूमों को, गरीबों को उनका हक मिले। वो ये चाहते हैं कि अपनी इजारादारी उनकी चलती रहे। मेरा एक ही सवाल है कि जब लोकतंत्र में हम रहते हैं, जमहूरियत में हम रहते हैं, तो हमको अपनी आवाज को पैदा करना जरूरी है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी, हर पार्टी के नुमाइंदे अपने अपने लोगों को, अपनी बरादरी को, अपनी जात को, अपनी कास्ट को वो आगे लेकर बढ़ते हैं। तो अब इसमें उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। अब जैसा ही मुस्लिम अक़लियत या अल्पसंख्यक समाज की बात आती है, तो सबका बोलना यह है कि आप लोग सिर्फ मुशायरा करना, एक खवाली का प्रोग्राम कर लेना और इलेक्शन आया तो सेकुलरिज्म के नाम पे हमको वोट डाल देना। हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे मसाइल बहुत हैं, जिंदगी और मौत से लेकर हमारे मसाइल हैं। वो मसाइल को हल कौन करेगा? तो और इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि आप में और हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी सरकार को या किसी पार्टी को सरकार में आने से रोक सकें। हम में इतनी सलाहियत है कि हम अपने वोट से बरादरान वतन के साथ लेकर हम अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। तो मेरा बोलना इतना ही है। और जो लोग यूपी के ताल्लुक से बोलते हैं, ये बात सच है कि 90% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने अपना वोट समाजवादी को दिया, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर हासिल क्या हुआ मेरे को बताइए। मैं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं के चुनाव के सिलसिले में मेरे ख्याल से मेरी कम से कम 150 से ज्यादा अल्लाह ने मुझे मौका दिया तकारीर करने का, पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने का। मेरी हर तकरीर को उठा के देख लिए, चाहे वो 10 मिनट की हो या आधे घंटे की हो। मैं ये बार बार बोल रहा था कि आप इनको नहीं रोक पाएंगे, बीजेपी को। तो मेरे को बोलते थे देखो मिला हुआ है। मैं अगर मैं झूठ बोलूंगा तो क्या मिला हुआ नहीं हूं क्या? मैं सच्चाई को बयान कर रहा था। देखो आप नहीं रोक पाएंगे, आप अपने नुमाइंदे को कामयाब कर लो। मगर आप आलिम दीन है, मैं यहां बैठकर नहीं बोल सकता ना कि हिदाया की पहली जिल्द में क्या लिखा हुआ है। वो तो आलिम दीन बोलेंगे। अब हनफी मसलक का मामला आएगा तो वो आलिम दीन बयान करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी क्या बयान करेगा? फतवा देना है दीन के वो आप देंगे। मगर सियासत का मैं तालिब इल्म हूं। हम
اس بات کو دیکھ رہے تھے, محسوس کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونے والا ہے, مگر مجھ پہ انگلی اٹھا دیے, بولے دیکھو ابھی سے بول رہا ہے. اب جب نتیجے آ گئے 10 مارچ کو, تو اس کے بعد کیا بول رہے ہیں, سب خاموش ہو گئے. الیکشن جب آتا نا, تو اب الیکشن اب گجرات کا آئے گا, تو ہم میں سے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہی پرانا جملہ ڈائلاگ بولیں گے, زندگی موت کا مسئلہ ہے. ابھی زندگی موت کا مسئلہ پھر چناؤ کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیا؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے, آپ کو اپنے ووٹ کی اہمیت دکھانا ہے. اور آپ تعلیم کا مسئلہ بولے, روزگار کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, بزنس کا مسئلہ ہے, زندگی کے ہر شعبے جات کا ایک مسئلہ ہے, اور اس کا راز تعلق جمہوریت میں سیاسی آواز سے اور طاقت سے ہوتا ہے. تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریے, اور یقیناً جمہوریت میں ہر ایک کو اختیار ہے تنقید کرنے کا. میں تنقید ہوگی, تنقید کو ہم قبول بھی کرتے ہیں. اگر ایسی تنقید ہو جس میں ہماری اصلاح ہو سکے تو مجھے قابل قبول ہے, مگر تنقید کرنا اور صرف اس لیے تنقید کرنا کہ نہیں یہ سیاسی قوت نہیں بن جانا, اگر یہ سیاسی طاقت بنیں گے تو نقصان ہوگا. نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ نقصان تو ہو ہی رہا ہے نا, نقصان تو ہو ہی رہا ہے. آپ فائدہ کہاں ہو رہا مجھے بتا دو. آپ فائدہ تو کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے. اب پارلیمنٹ میں آپ بولتے ہم تقریر کرتے, بھئی کیوں میں ایک ہی کروں؟ سب کو کرنا چاہیے نا, سب کو کرنا چاہیے. اگر کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب کو جانا ہے, کل میں بھی چلے جاؤں گا, تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ وہ یاد کریں گے کہ ارے ایک آدمی تھا بولنے والا, اب کوئی نہیں ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا. آپ کو پیدا کرنا ہے, آپ کو کسی کو اپنا نیتا بنا کر بھی جانا ہے. اور الحمدللہ یہ امت کسی کے فرد کی محتاج تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اگر میں اچھا کام نہیں کروں گا, اللہ مجھ سے بہتر کسی کو کام کرانے لگائے گا. میرا ماننا ہے, میرا ایمان ہے. اللہ آج مجھے مقام دیا, موقع دیا, میں کام کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, جتنا مجھ سے ہو سکتا میں بولوں گا, کیونکہ کل مجھے جا کر جواب دینا ہے کہ تم کو دولت دی گئی, مقام دیا گیا, عزت دی گئی, تم کیا استعمال کیے. تو ٹھیک ہے, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کوئی میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں. یقیناً اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہے تو اسدالدین اویسی ہے, مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے یہاں نہیں پوچھے تو وہاں تو جواب بتانا پڑے گا نا. مال بتانا کیا, سب سامنے رہے گا. میرے انگلیاں, میرا بال, میرا ناخن, میرے پیر, سب جواب دے دیں گے. تو یہ آپ بھی سوچئے, اور اس بات کو ہم کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے, بالکل آسان نہیں ہے. میں جو صابر بھائی کی قیادت میں جو کام ہو رہا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے یہ. مگر ہم کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے, اعتماد ہے, ہم اس پر توکل کر رہے ہیں. اور جو سنت کا طریقہ ہے کہ مشورہ کرنا, مشاورت کرنا, اسی لیے آپ کو تکلیف دی گئی, زحمت دی گئی, بار بار آپ کو تکلیف دیں گے اس معاملے میں. آپ سے پوچھتے رہیں گے, آپ کی سرپرستی چاہیے, آپ کی رہبری چاہیے. اگر ہم غلطی کریں تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے بولو کہ صابر اسد صاحب یہ صحیح کرو, یہ غلط ہو رہا ہے. میں اس کے لیے قبول کرنے تیار ہوں. اور دیکھیے, اگر آپ مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہے جماعت کی, تو میں دیوار کے پاس کھڑے کر نہیں پکار سکتا نا, امام صاحب آپ بھول گئے, آپ سورہ غلط پڑھے. میرے کو, میں جماعت میں رہوں گا تو بولوں گا نا سبحان اللہ سبحان اللہ, تو امام صاحب کو خیال ہے ارے بھائی یہ غلط ہوا ہے. دیوار کے پاس بڑھ کھڑے رہ کے تو نہیں بول سکتا نا میں. تو جماعت میں جب رہوں گا تو تبھی تو صحیح ہوگا نا معاملہ. تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیے. اور یہ ہمارے خلاف لوگ بولتے ہیں, ان کا اختیار ضرور ہے, مگر ہم یہ بول رہے ہیں کہ صرف اگر میرے خلاف بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے بتاؤ. پھر آپ حل بھی تو نہیں بتاتے. پھر آپ بولتے نہیں سب ایک ہی حمام میں سب ننگے ہیں, تو پھر بھائی کس کے پاس کپڑے پہنے اس کو پکڑ لو نا. آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ چیز ہے, میں یہ حل بتا رہا ہوں, یہ طریقہ بتا رہا ہوں. اگر آپ بولیں گے نہیں سب بیکار ہے تو کیا کرنا, گھر کے در و دیوار کو بند کر کے بیٹھ جانا ہاتھ میں تسبیح لے کے, ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا. آپ کو گھر کے باہر بھی جانا ہے, گھر کے باہر ہمارے مسائل ہیں. تو ان چیزوں پر آپ غور فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شیخ عبد الکریم. جناب اسدالدین اویسی صاحب, میں آپ کا استقبال کرتا ہوں, اور سعید بھائی
हम साहब आप तमाम का, और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि आपका कच्छ में भुज में आने को कबूल फरमाए और कच्छ के तमाम लोगों के लिए कार्य खैर यानी बेहतर बनाए, आमीन। हालांकि था तो मसला सवालों का, लेकिन एक मेरा मशवरा है, कच्छ के तमाम आवाम को, हर शख्स को आपकी जरूरत है। कच्छ में सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है, कच्छ में सिर्फ दलित परेशान नहीं है। इसी तरह जैसा गुजरात में और कई सारे इलाकों में देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती रहती है, होती रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हम फख्र से कह सकते हैं कि कच्छ में कभी हिंदू ने मस्जिद को नहीं तोड़ा है, न किसी मुसलमान ने मंदिर को तोड़ा है, नहीं तोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता अगर कोई एक निकल भी जाता है तो हर कौम में ऐसा निकल जाता है, मुसलमान भी निकल जाता है। हमारा ये मशवरा है कि कल की जो आपकी सभा होने वाली है या कल के जो आपके प्रोग्राम होने वाले हैं या कहीं भी आपके जो अल्फाज निकलने वाले हैं वो एक ऐसे अल्फाज हो जो कच्छ के हर शख्स आपकी तरफ आए, आपकी तरफ आप उसको खींचे अपनी तरफ। हर शख्स, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ दलित नहीं, बल्कि हर शख्स आपका ये होना चाहिए कि हर शख्स मेरे पास आए और हर शख्स को आपकी जरूरत भी है। इंशाअल्लाह अगर आपका ये मसला रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं और आपने कच्छ के बड़े बड़े जो लीडर उनसे मालूमात भी की होगी कच्छ के बारे में, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप एक बेहतरीन रहनुमा, बेहतरीन कायद बनकर रहनुमा होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हम हर शख्स को साथ लेकर, हमारे सिर्फ दीगर अपनाए वतन को साथ लेकर, चाहे दलित हो, हमारे हिंदू भाई हो, इन सब को साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस मुल्क के लिए सबसे अहम चीज अमन है और अमन को मजबूत रखना। और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कल हमारी सभा होगी, जलसा भी होगा और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि अमन को खतरा ना पैदा हो, ना अमन दरम बरम हो, और हम जमहूरियत के दायरे में रहकर अपनी बात को करते आए हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मैं आपको इस बात का तयक़ुन दे रहा हूं और हम लोग करते रहेंगे। मजलिस का पोजीशन ये है कि जो मुल्क का कानून है उस कानून के दायरे में रहकर ही हमको अपने बात को हल करना है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, ना कभी लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। शेख ओवैसी साहब, हम आपका कच्छ की सरजमीन पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। देखिए, आपकी शख्सियत जो है मुतासिर होते हैं लोग। आपकी जो खिताब है, लाखों की तादाद में हम लोग रहते हैं, उस कुरान और हदीस की रोशनी में आप अपने खिताब को आवाम के सामने यूं रखें। देखिए, सारी बातें जो मैं कहूँगा कुरान हदीस की रोशनी में, शायद आपको इन चीजों में तरक्की भी दे। सबसे पहली चीज सरजमीन कच्छ के एतबार से मैं आपसे कहूंगा कि आप यहाँ की आवाम को तालीम पर जोर दें कि आप खुद अपने बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाएं। और तालीमी मैदान में आगे बढ़ने से क्या होता है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप हैं। और दूसरी चीज, आपके किताब में आप मुसलमानों से कहें कि कुछ मुसलमान अपने अखलाक व किरदार को भी संवारें। यहाँ अगर मुसलमान अपने अखलाक व किरदार में ऊंचे होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी कहा कि फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम, कि जो तुम्हारे जानी दुश्मन है वो तुम्हारे जिगरी दोस्त बन जाएंगे। और हम अगर अखलाक में ऊंचे हुए तो देखिए, एनआरसी के तौर पर हमें जो निकालने की कोशिश हुई तो एक मौका ऐसा भी आया मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में, जब सहाबा को मजबूर किया गया तो हजरत अबू बकर ने अपना सामान उठाया। मक्के का एक सरदार इब्ने दुगन्ना अबू बकर को पकड़ लेता, हजरत अबू बकर को, और अबू बकर से कहता है कि कहाँ जा रहे हो? कहा, तुम्हारे ये जो लोग हैं या हमें आराम के साथ, इत्मीनान के साथ इबादत का मौका नहीं देते, जाते किसी ऐसी जगह जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत सुकून के साथ कर सके। तो उनका अखलाक ऐसा था कि इब्ने दुगन्ना जो मक्के का सरदार है, अबू बकर से कहता है, अबू बकर कि तुम्हारा जैसा अजीम इंसान, बाअखलाक इंसान, न तुम अपनी मर्जी से इस मक्के को छोड़ सकते हो और न मक्के वालों की हिम्मत के तुम्हें इस मक्का छोड़ने पर मजबूर करें। तो आप कहिए मुसलमान आवाम को कि अखलाक में इतने ऊंचे हो जाओ कि जो तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहे हो तुम्हारे हाथ और पैर पकड़ लें कि यहीं पर रहना है, तुम हिंदुस्तान की गलियों का सरमाया हो। इस तरह अपने अखलाक को संवारे। और दूसरी चीज, यहाँ की आवाम को कहें कि यहाँ हिंदुस्तान इज्जत के साथ जीना है, सर उठा के जीना है
اور اپنے حقوق کی اگر حفاظت کرنی ہے تو آپ مسلمانوں سے کہیں کہ یہاں کے قانون کو پڑھیں، یہاں کے قانون کو اچھی طریقے سے پڑھیں. اور یہ چیز آپ کو قرآن میں بھی ملے گی. یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا تھا تو قانون کا سہارا لیا، ایک سامان چھپایا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے تھیلے کے اندر، اس کے سامان کے اندر. پھر مصر کی حکومت بھی انہیں اجازت دیتی ہے کہ اب وہ بنیامین کو اپنے پاس روک سکتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جہاں رہو وہاں کے قانون کو اچھی طریقے سے پڑھو. اور اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے، آج مسلمان دین کو چھوڑ کر ایمان اور اخلاق کو برباد کر کے کسی پارٹی کے پیچھے اور کسی نیتا کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں عزت دے سکتا ہے. یہ اگر نیتا اگر ہمارے پکش میں آ جائے، اگر ہم اس کو جیتا لے جائیں تو یہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے. دیکھیے تقدیر کے ساتھ تدبیر ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ ہونا چاہیے، آپ اپنے خطاب میں کہیں کہ مسلمانوں سے کہیں کہ تمہارا اصل سرمایہ تمہارا دین ہے، تمہارا اصل سرمایہ تمہاری نمازیں ہیں، تمہارا اصل سرمایہ تمہارا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے. حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ کننا اذل امہ فآتانا اللہ بالاسلام. حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہمیں جو عزت، ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہمیں جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں جو عزت ملی ہے اس قرآن کی وجہ سے ملی ہے. تو آپ اپنے خطاب میں مسلمانوں سے کہو کہ کوئی نیتا تمہیں عزت نہیں دے سکتا. ہاں سیاسی میدان میں ہمیں آنا ہے، تقدیر کے ساتھ تدبیر ضروری ہے، لیکن تمہارا اصل سرمایہ، تمہیں جو عزت ملے گی وہ تمہاری نمازوں میں ہے، تمہارے دین میں. تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور اس کے ساتھ میرا ایک خاص مشورہ ہے اویسی صاحب آپ سے. یہ مشورہ یہ ہے کہ آپ عوام کو کہیے کہ اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے علماء کا احترام کریں. اور یاد رکھیے قسطنطنیہ کے مطلب ایک شہر جو برباد ہوا، اس کی بربادی کا سبب یہی بنا کہ وہاں کی عوام کو علماء سے دور کر دیا گیا، علماء سے بدگمان کر دیا گیا. آپ اپنی مجلس میں علماء کو رکھیں اور علماء سے مشورہ کریں. اس کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو دوں. ایک بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک، ان کی ایک مجلس میں رجا بن ہیبہ ایک عالم بیٹھا کرتا تھا. دیکھیے علماء اگر بادشاہ اپنی مجلسوں میں علماء کو بٹھاتے ہیں تو وہ سیاست کہاں جاتی ہے؟ سلیمان اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے. وہاں کے ایک عالم رجا بن ہیبہ نے سلیمان کو مشورہ دیا. عالم کا مشورہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کی جگہ پر عمر بن عبدالعزیز، اور عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے اس امت کو کتنا خیر حاصل ہوا وہ سب کے سامنے ہے. کہا اگر آپ اپنے بھائی ہشام کی جگہ پر عمر بن عبدالعزیز کو اگر بادشاہ بنا دیتے ہیں تو امت کو بڑا خیر حاصل ہوگا. سلیمان بن عبد الملک نے امانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھا کہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ کی کرسی عمر بن عبدالعزیز کو ملے گی. اور پھر امت کو کتنا خیر حاصل ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اسی طرح آپ عالموں سے مشورہ کریں، عالموں کو اپنے مجلس میں رکھیں. اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو تسلی دیتا ہوں کہ آپ قدم آگے بڑھائیں، پوری کش کے مسلمان آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. میں ابھی یہی ذکر کیا تھا کہ آپ لوگ آ جائیے مجلس میں. آپ آئیے، ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کریے، جماعت کا بھی کام ہوگا. اور جو آپ جو تجویز پیش کیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور متفرق نہ ہو جاؤ، بالکل صحیح ہے. ہم تو بولتے ہیں مگر آپ لوگوں کے آنے سے اور اس میں برکت ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ہم اس کا ضرور خیال رکھتے آئے ہیں اور خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ لوگ جو ہے اپنے اللہ سے رشتے کو اور اپنے رسول کی غلامی کے رشتے کو اور مضبوط کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ بہت دور سے آئے. میرا بہت مختصر سوال ہے آپ سے کہ ہم جتنے علماء کرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہم یا تو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا پھر مکتب کے ساتھ، مدارس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہم پوری طریقے سے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، بہت مختصر سوال یہ ہے کہ ہم آپ کی پارٹی کے ساتھ بالکل سمجھ ہیں. اس میں ہم کس طریقے سے آپ کے ساتھ آویں؟ ہم کھل کر تو نہیں آ سکتے، ہم پارٹی میں شریک بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ علماء ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں رہتی ہے مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، جمعیت کے ساتھ، بہت ساری سنستھاؤں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم آپ کو کس طریقے سے آپ کی پارٹی کو، الحمدللہ ہم آپ کے ممنون اور مشکور. ایک بات میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بہت سارے مسائل آپ نے پارلیمنٹ میں اٹھائے ہیں
لیکن سب سے زیادہ خوشی ہمیں آپ نے طلاق ثلاثہ کے اوپر جو مسئلہ اٹھایا تھا اس کے اوپر الحمدللہ ہم اتنے خوش ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ پورا ہندوستان اور جو ایمان والے تھے تمام خوش ہوئے تھے اس بات سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آپ کا ساتھ سہکار دیں اور آپ کو کس طریقے سے سپورٹ دیں تاکہ اس مجلس کو تقویت اور مضبوطی ملے. السلام علیکم. میں آپ کے جذبات کے اور آپ کے عزت کرتا ہوں اور آپ جو بات بولنا چاہ رہے ہیں میں اس کو پوری طریقے سے سمجھا بھی ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جگہ بیٹھ کر آپ جو مدد کر سکتے کریے اور کم سے کم دعا تو آپ ضرور کر سکتے, دعا کریے اور الیکشن کے ٹائم پہ طلاق مت دیجیے ہم کو بس. اور ابھی ہمارے یہ ٹرپل طلاق کا آپ مولانا نے ذکر کیا تو کانگریس پارٹی میں مرحوم مولانا اسرار اللہ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایم پی تھے. میں چشمدید گواہ ہوں اس چیز کا پارلیمنٹ میں کہ مولانا جو ہے کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤں کو بول رہے تھے کہ میرے کو اس مسئلے پہ بولنا ہے, میرے کو بولنا ہے اس مسئلے میں, کیونکہ میں ادھر گزر رہا تھا تو گفتگو رک گئی. میرے کان سنے اس بات کو, میں جو غیبت نہیں کر رہا ہوں, میری سنا ہوں میں. بعد میں مولانا کو بولا کہ آپ بولیے ضرور, آپ کو بولنا ضروری ہے. بولے ہمیں بول رہا ہوں ان لوگوں کو, تو مولانا کو بولنے نہیں دیے. مولانا کا ویڈیو ہے, آپ جا کر دیکھ لیجئے. تو یہی ہوتا ہے کہ ایسے حساس مسئلے پر بھی جو ایک عالم دین تھے اور رکن پارلیمان بھی تھے, انہی کی پارٹی نے ان کو روک دیا بولنے سے. اور پارلیمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سے اراکین پارلیمان ہیں, ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور وہ کھل کر ہم کو بولتے بھی خاموش تھے کہ بھئی اب ہم پارٹی کے اصول کے پابند ہیں اور اسی لیے ہمارے کو یہ تہدیدات ہیں, یہ ہمارے پہ مشکلات ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اگر پارلیمنٹ میں اسمبلی میں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے آپ؟ آپ کو یہیں بولنا ہے اور یہیں بولنے سے ہی آپ کی آواز کو, آپ کے مسائل کو حکومت, سرکار, منسٹر سنے گا. اور جیسا کہ آپ سنے, اب لوگ بولتے کہ بھئی اگر تمہارے 3, 4, 5 MLA جیت گئے, 10 جیت گئے, کیا ہوگا؟ ٹرپل طلاق کے قانون کے خلاف تو ہم بولے اور آپ سنے اور آپ کو اس کا احساس بھی ہے کہ چلو ہماری بات بولی گئی. وہ قانون کو پاس ہو کے میرے خیال سے ایک 1.5-2 سال ہو گیا, مگر آپ کو یاد ہے. مگر یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی اور قابل لوگوں کی, مجھ سے زیادہ قابل لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے اور اللہ انشاءاللہ تعالی ضرور پیدا کرے گا. میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے نمائندے ہر جگہ پر جائیں, دستور کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اس کو بولنا چاہیے اور لڑنا چاہیے اپنے مسائل کے لیے. ابھی لوگ یہ بھی آپ کو نہیں بتا رہے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دلی میں ایک ابھی وزارت اقلیتی بہبود کو بنایا گیا. جب سچر کمیٹی آئی تھی اس وقت سے میں خود اور کئی دیگر مسلم ایم پی ہم لوگ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم کو بولتے تھے کہ مائنارٹی منسٹری بناؤ, آپ بناؤ مائنارٹی منسٹری بناؤ. اس سے پہلے منسٹری آف سوشل جسٹس امپاورمنٹ میں حصہ تھا یہ اقلیتوں کا. منسٹری بنی, ہم لوگ جا کر بولے, سرکار کو بتائیں ہم لوگ کہ بناؤ آپ. پھر ہم لوگ جا کر بولے کہ آپ سچر کمیٹی کے سفارشات پر عمل آوری کرو. تھوڑے بہت سفارشات کی عمل آوری ہوئی, MSDP کا پروگرام بنا, اسکالرشپ کی رقم میں اضافہ ہوا. اگر میں جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تھا تو
बीजेपी के ही एक छत्तीसगढ़ के सीनियर एमपी चेयरमैन थे, बड़े काबिल आदमी थे वो। तो मैं उनको बार बार बोलता था कि उनको हम भाई जी बोलते थे। अभी नहीं है, वो टिकट नहीं दिया उनको, तो गवर्नर है अभी किसी जगह के वो। तो मैं बोला देखो भाई जी, ये है, ये मुसलमानों का डेटा है और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही जरूर है, मगर कितने लोग अप्लाई कर रहे और कितनों को स्कॉलरशिप मिल रहा, तो यकीन नहीं करे मेरी बात का। बोले ठीक है, तुम मीटिंग में तुम उठाना वो इसी। तो हम वो मीटिंग में उठाए। रुक जाइए भाई, जरा रुक जाइए। मंत्रालय के लोग आए, उनसे मैं पूछा कि बताओ आप, ये स्कॉलरशिप की जो दरखास्तें आती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, उसमें कितने मुसलमान दरखास्त देते? अब तो बोल रहे हम इतने लाख को दिए, इतने लाख को दिए, इतने लाख को दिए, आती कितनी स्कॉलरशिप? तो वो बोला कि सर ऐसा है ना कि हम ऐसा दे रहे हैं। बोला नहीं, सब घुमा फिरा के बात नहीं करना, सीधा सीधा बोलो कितने एप्लीकेशन आते, कितनों को दे दे तुम। आपको मालूम, एक मुसलमान उसका बच्चे को जो स्कॉलरशिप मिलती, एक को मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मगर 19 लोगों को नहीं मिलती है। माने एक स्कॉलरशिप के लिए 20 लोग लड़ते हैं। हम बोले मैं बना के दिया, रिपोर्ट है, आप नेट पे निकालिए आप, उसका हम कैलकुलेशन करें। जो एक्सपर्ट है मैं उनसे जाकर मिला, वो बोले कि अगर 2000 करोड़ सरकार बढ़ा देती है तो जो कोई भी अप्लाई करता है उसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो हमारा नरेंद्र मोदी सरकार से ये डिमांड रहा है, आज भी डिमांड रहा है कि आप अक़लियतों को, मुसलमानों को नहीं, अक़लियतों की जो स्कॉलरशिप की स्कीम है उसको डिमांड ड्रिवन करो, यानी जो अप्लाई करता है उसको दो आप, और सिर्फ 2000 करोड़ बढ़ाना है। ये हम कर सकते, वो रिपोर्ट में आ गया वो बात। अब वो रहेगा, वो ये लड़ाई जारी है अभी उसके लिए। आपको इस तरह के लोगों की जरूरत है जो आपको जाकर आपकी तकालीफ को बयान करे, उसका हल निकाल सके। तो ये आपको करना है, मैं नहीं कर सकता काम ये, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता हूं। हम सब जब मिलके बैठ के मुत्तहिदा तौर पर एक फैसला करेंगे, भाई ये हमारे मसाइल हैं, इसका हमको हल निकालना है, तो ये अगर आप लोगों का ताउन साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह यकीनन हमको और आपको सबको कामयाबी मिल सकेंगी। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इकट्ठा हो गया। अभी प्रेस को बात करना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह शुक्रिया आपका। मैं पूरी चीजों को याद रखूंगा आपके साथ।